अच्छा स्टूडेंट्स हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हेलो, लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन. प्लीज पुट योर mics on a mute. Let me finish off explaining convenience goods to you, then you can forward all your questions to me. So we were talking about types of consumer products, and so far I've discussed with you the examples to it. Convenience goods are all goods that we use on day-to-day basis. Okay. The next thing we are talking about is a marketing consideration towards convenience products. So the customer buying behavior is as such that we buy such goods on frequent basis. Okay? We may buy them every third day. We may buy them at least at times we are buying them every day, right? So convenience goods are goods which we may buy daily, which we may buy uh, after every 3 days. So there's a high frequency of purchase to them. Then there's little planning involved. Okay, we don't think that extensive before buying convenience goods because more or less the goods have less differences to them. There is less comparison between goods. Okay, and then there's less shopping effort. Even if I want to buy a newspaper for myself, right? So I need Dawn newspaper. Okay, I have more trust on Dawn and his coverage of media. So I place a requisition for Dawn. Now the thing is that I have a choice of walking all the way to the newsstand, right, which is just 2 streets from my house. I can go all the way there. I can walk to the news hawker, buy the newspaper myself in physical time, or I can even ask Amir. Let us suppose Amir is my kid brother. I may ask him, give him some money, hand him some cash, and ask him to buy the newspaper on my behalf. This is called low consumer involvement. This is called low consumer involvement. आपका ज़ाती तौर पे convenience good खरीदने के लिए खुद स्टोर पे होना is not a condition. I need a newspaper for myself. मुझे पढ़ना है, ठीक है. लेकिन अगर if my hands are full, ठीक है, so I can ask my sister, give her the cash and ask her to buy it on my behalf. इसको हम कहते हैं low consumer involvement. ठीक है, सही है. दूसरी बात जो कन्वीनियंस गुड्स होते हैं, ठीक है, इनकी प्राइसेस कैसी होती है? लो होती हैं, क्योंकि रोज के बिकने वाले आइटम्स है, रोज से खरीदारी वाले आइटम्स है, तो इनको हम बहुत महंगा नहीं हम बेचते हैं. इनकी प्राइसेस कैसी हैं? लो. ठीक है. इन कंपैरिजन टू हम बात कर रहे हैं शॉपिंग गुड्स की, स्पेशलिटी गुड्स की और अनसॉर्ट गुड्स की. विल टॉक अबाउट देम इन अ व्हाइल. अभी आप ध्यान में रखें कि जो कन्वीनियंस गुड्स होते हैं इनकी प्राइसेस कैसी होती हैं? लो होती हैं. दूसरी बात, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है? वाइड डिस्ट्रीब्यूशन. Moreover, in addition to being widely distributed, we see them being sold at convenient locations. आप देखें जो टेबल सॉल्ट नेशनल फूड्स का, ठीक है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पूरे मुल्क में है ना, ठीक है. ये तो बहुत नायाब गुड नहीं है, ये रोज के इस्तेमाल होने वाला गुड है लोगों का. तो हम देखते हैं कि ये सुपर स्टोर्स पे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, कन्वीनियंस स्टोर्स पे, नेबरहुड स्टोर्स पे ये आम मैसर है. इसको हम कहते हैं वाइड डिस्ट्रीब्यूशन. तो रोज के जो हम चीजें खरीदारी करते हैं, शैम्पूज, डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट, ब्रेड, केचप, ये सब चीजें क्या हैं? कॉफी, शुगर, ये सब कन्वीनियंस गुड्स है ना. उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है? वाइड डिस्ट्रीब्यूशन. बेचने वाला इसको बहुत वाइडली स्केल पे अवेलेबल करता है. ये शहर के अपटाउन में भी है, डाउनटाउन में भी है, ठीक है. और अगर ढूंढने जाए तो रिमोट एरियाज में कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है. और ये इनको किस लोकेशन पर रखा जाता है? दे आर पुट ऑन कन्वीनियंट लोकेशंस. अच्छा, इनको प्रमोट कैसे किया जाता है? हाउ आर दे प्रमोटेड? दे आर प्रमोटेड एट अ मैसिव लेवल. दे आर प्रमोटेड एट अ मैसिव लेवल. यानी कि इनको हम लार्ज स्केल सेल और प्रमोशन से बेचते हैं. इनको हम लार्ज स्केल सेल और प्रमोशन से बेचते हैं. ठीक है, सही है. मास प्रमोशन का मतलब ये है कि टेलीविजन पे, रेडियो पे, अखबारात पे वाइडली इनको प्रमोट करके सेल किया जाता है. ये कन्वीनियंस गुड्स के बारे में मार्केटिंग कंसिडरेशंस होती हैं. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज आस्क. If you have any consideration, if you have any questions, you can please ask. If you have any questions, you can please ask. Convenience goods को लेके marketing consideration से कोई सवाल है आपको तो मुझे आप बता दें. कोई question? No questions? Yes. अच्छा, आगे हमारे पास है स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है शॉपिंग गुड्स.
शॉपिंग गुड्स जो है स्टूडेंट्स, ये वो गुड्स होते हैं जिनकी एग्जांपल्स कैसी मेरे पास, जैसे घर में हम यूज करते हैं मेजर अप्लायंसेस, जैसे हम घर में यूज करते हैं मेजर अप्लायंसेस, ठीक है, सही है। टेलीविजन हो गया, क्लोथिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, होम ड्यूरेबल्स हो गए, ये सारे वो गुड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं, दे फॉलो इन द कैटेगरी शॉपिंग गुड्स, they fall in the category shopping goods. All home durables that we use, juicers, blenders, iron, vacuum cleaners, ठीक है, यहाँ तक घर का फर्नीचर, लिबास हो गया मेरा, ठीक है, ये सब क्या है, शॉपिंग गुड्स में आते हैं। सीखना क्या है, आपने सीखना है कि शॉपिंग गुड्स और कन्वीनियंस गुड्स की मार्केटिंग कंसिडरेशंस क्या है। पहली बात तो ये इनका बाइंग बिहेवियर बिल्कुल अलग है, इनका बाइंग बिहेवियर बिल्कुल अलग है। शॉपिंग गुड्स जो है स्टूडेंट, दे आर लेस फ्रीक्वेंटली परचेज्ड, दे आर लेस फ्रीक्वेंटली परचेज्ड। अखबार मेरे घर पर रोज सुबह नया आता है, ठीक है, I have a subscription to Dawn News, so every morning I get a new newspaper, ठीक है। I may run out of the toothpaste tube, so every third day I'm buying it. However, I don't buy television every third day, I don't buy furniture for my house every third day, and neither am I buying clothes for myself every third day. Let's get real. I mean, the fact that you make money also makes you sensible, okay? So televisions, furniture, and clothing are kind of goods, we put them in the category shopping goods. Other than that, we less frequently purchase them in comparison to convenience goods. Convenience goods हम एक तो खत्म हो जाते हैं, so we need to replenish them after every third day, ठीक है, सही। शॉपिंग गुड्स जो है ये कुछ चलते हैं हमारे साथ। मेरे घर में फर्नीचर जो है, मेरा ख्याल है अगर मेरी एज 40 इयर्स की है तो मेरे घर में फर्नीचर मैक्सिमम से 3 बार चेंज हुआ। फर्नीचर की लॉन्गेटिविटी होती है ना, तो ये कुछ टाइम निकालता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेलीविजन जो है, माई लाइफ स्पैन हैज बीन ऑफ 40 years so far, तो मेरे घर में 2 टेलीविजन चेंज हुए हैं अभी। टेलीविजन की लॉन्गेटिविटी होती है, ठीक है, दे होम ड्यूरेबल्स। क्लोथिंग, आई हैव क्लोथ्स इन माय वार्डरोब व्हिच आर 7 years, which have been there in my wardrobe since 7 years, so if they're not worn out, I'm using them, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इनका जो बाइंग बिहेवियर है, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। इनका बाइंग बिहेवियर कैसे होता है कि जो आपके शॉपिंग गुड्स हैं, पहली बात, वी बाय देम लेस फ्रीक्वेंटली, ये समझिएगा, ठीक है। वी डोंट बाय फर्नीचर एवरी डे, तो ऊपर जो लिखा है लेस फ्रीक्वेंट, उसको प्लीज आप समझें, ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी लिखा है कि जहां हम कन्वीनियंस को तो खरीदने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करते, शॉपिंग गुड्स से खरीदने के लिए हम फिर भी कुछ प्लानिंग करते हैं। टेलीविजन अगर मुझे खरीदना है तो मैं प्लान करती हूँ, टेलीविजन मुझे लेना है, क्योंकि ये अगर 2-2.5 लाख की चीज मैं ले रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे प्लान करना है ना, मुझे फंड्स लाइन अप करना है, मुझे देखना है कि बेस्ट टेलीविजन सोनी दे रहा है, एप्पल दे रहा है, सैमसंग दे रहा है, हायर दे रहा है, क्योंकि होम ड्यूरेबल्स में क्योंकि ये स्लाइटली हाई एंड परचेसेस होती है तो हम थोड़ा प्लानिंग करते हैं। फिर मैं देखती हूँ कि यार मैं टेलीविजन खरीदने खुद जाऊंगी और वुड आई टेक सम एक्सपोर्ट विद, मुझे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि चीज जो है वो कुछ 14-15 साल मेरे घर में चले। तो हो सकता है कि अगर मेरे पेरेंट्स ने टेलीविजन पहले खरीदा हो, ठीक है, तो मैं इनसे ओपिनियन लूँ, ये प्लानिंग में आता है। मुझे इनकी मौजूदगी और अपनी मौजूदगी को कोऑर्डिनेट करना है, ये प्लानिंग में आता है। फिर मैं अगर उन्होंने मुझे कहा कि सोनी के टेलीविजन अच्छे हैं तो मैं सोनी के होम पेज पर जाकर सोनी के रिव्यूज पढ़ूंगी, ये प्लानिंग में आ जाता है। फिर मैं होम पेज पर जाकर सोनी की पूरी वेरिएशन देखूंगी, ठीक है, फ्रॉम लार्ज स्क्रीन टेलीविजन सेट्स टू मीडियम स्क्रीन टेलीविजन सेट्स, उनकी रेजोल्यूशन, उनकी पावर, उनकी कैपेसिटी, उनकी हैंडलिंग, उनकी मेंटेनेंस, वो सब मुझे देखना है ना, तो इसी सारा मामला प्लानिंग में चला जाता है। तो ये थोड़ा इसकी बाइंग थोड़ी एक्सटेंसिव हो गई है। मुझे टेलीविजन खरीदना था सोनी का, तो इट टुक मी अराउंड 2 months, because I'm spending some good money on it। अगर 6 लाख का टेलीविजन मेरा है, ठीक है, तो भाई इस पे मेरे लगे थे 2 महीने मुझे सर्च करने में कि मैं कौन सा टेलीविजन लूं, राइट, ठीक है। सपोज कर आपको फुटबॉल मैचेस देखने का शौक है और आपको बड़ा टेलीविजन चाहिए, बड़ी स्क्रीन चाहिए आपको, क्योंकि हाई एंड परचेज है तो आप एक्सटेंसिवली प्लान करते हैं, यू सीक एक्सपर्ट ओपिनियन, यू गो टू द डीलरशिप, डीलरशिप का सेल्स पर्सन आपको जब तक मुतमईन नहीं करता, आई डोंट लूसन द स्ट्रिंग्स ऑफ माई पर्स, उसका काम मुझे मुतमईन करे, मुझे बताए कि स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट क्यों है, फैशन के लिए बेस्ट क्यों है, कलनरी आर्ट के लिए बेस्ट क्यों है ये, ठीक है। तो मैं एक्सपर्ट ओपिनियन देखती हूँ, बेचने वाले का भी, खरीदारों का भी। तो प्लानिंग जो है इसकी थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है ना, शॉपिंग एफर्ट में लगा रही हूँ।
दूसरी बात, ब्रांड्स में डिफरेंस है। सैमसंग का टेलीविजन आप लेंगे तो अलग क्वालिटी होगी, सोनी का टेलीविजन आप लेंगे अलग होगी, आप एप्पल का टेलीविजन लेंगे तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो ये कंपैरिजंस बहुत मीनिंगफुल होते हैं। तो इन कंपैरिजंस में हमें सच्चाई ढूंढने के लिए, हमें एविडेंस ढूंढने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं मुतमईन रहें, तो फिर हम प्लानिंग को एक्सटेंशनली देखते हैं। ठीक है। अदर देन दैट, शॉपिंग गुड्स में यार जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है कि प्राइस का डिफरेंस के अलावा क्वालिटी का डिफरेंस भी बहुत होता है। ठीक है। और स्टाइल का डिफरेंस भी बहुत होता है। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल होता है गुड का, स्टाइल को आप कैसे बयान करेंगे? स्टाइल होता है सिर्फ गुड की अपीयरेंस, गुड की अपीयरेंस। I'm sure nobody would want to have ugly durables in the house. A, they cost so much. And if they're ugly looking, if they're poor on quality, right? So what's the point of buying them all together? तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये हाई एंड परचेज होती है, ये चीज़ हमारे साथ हम खरीदते हैं हर 16 साल में, हर 14 साल में। मैं आपको एक यूजुअल पैटर्न बता रही हूँ। टेलीविजन मेरे घर पर तीसरे दिन नहीं आते, होम अप्लायंसेस हम हर थर्ड डे नहीं लेते ना। तो हम क्या करते हैं, हम डिसोनेंस को इवेट करने के लिए, मायूसी को अवॉइड करने के लिए, डिसेप्शन को अवॉइड करने के लिए हम जरा एक्सटेंसिवली प्लान करते हैं, हम प्लानिंग को स्ट्रेच कर देते हैं। आई मे टेक अ मंथ टू बाय शॉपिंग गुड्स। डिटर्जेंट सोप खरीदने के लिए मैं 1 महीना नहीं लगा। अच्छा, एक सेकंड। हेलो, आई एम सॉरी। अच्छा, अब हम देखेंगे प्राइसेस। तो स्टूडेंट्स, प्राइसेस में देखें, जो प्राइस कंपैरिजन है, शॉपिंग गुड्स जो होते हैं वो हाई प्राइस है इन कंपैरिजन टू कन्वीनियंस गुड्स। सोप्स में मैक्सिमम मार्केट में 40 रुपए 60 रुपए का एक पीएस का सोप मिल जाता है, 90 रुपए का एक सोप में मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन 90 रुपए में टेलीविजन नहीं आ रहा, 90 रुपए में फर्नीचर नहीं आ रहा, 90 रुपए में क्लोथिंग नहीं आती है। सो इनकी प्राइसेस कैसी होती हैं? हायर। ठीक है। अच्छा, फिर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी सिलेक्टिव होती है। अगर मैं फिलिप्स का वैक्यूम क्लीनर ले रही हूँ तो इसकी सिलेक्टिव जगह है जहाँ से फिलिप्स से गुड्स मिलते हैं। अगर मुझे डॉलर्स का रेफ्रिजरेटर चाहिए तो देयर सिलेक्टिव आउटलेट्स जहाँ से मुझे खरीदना है। ठीक है। अगर मुझे खाड़ी का कपड़े चाहिए तो उसकी सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है, सिलेक्टिव जगह है जहाँ से ये मिलता है। ये टेबल सॉल्ट नहीं है कि आपको शहर में हर 10 फुट पे मिल रहा हो। ठीक है। फिर इनकी प्रमोशन कैसे होती है? जो आपके शॉपिंग गुड्स हैं जिनमें आपके होम ड्यूरेबल्स आ जाते हैं, इनको बेचने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग भी करनी है एज अ सेलर, और आपको वो पर्सनल सेलिंग भी करनी है। पर्सनल सेलिंग में क्या है कि आपको सेल्स टीम के लोग आपको डिप्लॉय करने पड़ेंगे स्टोर्स में, जो लोगों को गाइड कर रहे हैं कि टेलीविजन सेट जो है, हम जब टेलीविजन खरीदने जाते हैं तो सेल्स पर्सन की टीम वो टेलीविजन चला के दिखाती है। ठीक है। उसको ऑन ऑफ करना फिर सिखाएगी, उसका चैनल चेंज करना सिखाएगी, पिक्चर रेजोल्यूशन दिखाएगी। तो यू नीड अ सेल्स स्टाफ, अ सेल्स पर्सन टू असिस्ट यू फॉर द एंटायर परचेज। इसे हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग। ठीक है। सोनी का एड जो है वो टेलीविजन पे भी आता है। अच्छा, आम स्टूडेंट्स देखिएगा, आमतौर पर जो होम ड्यूरेबल्स होते हैं इनके एड्स टेलीविजन पर नहीं आते, इनके एड्स आते हैं मैगजीन्स में। ठीक है, सही है। तो हमें अप्लायंसेस, हमें शॉपिंग गुड्स खरीदने के लिए ऑल टुगेदर हमें किसी ना किसी की असिस्टेंस चाहिए होती है, किसी ना किसी की मदद चाहिए होती है, हम खुद से फैसला नहीं कर सकते। माइक्रोवेव्स जो हैं मुझे खरीदने के लिए किसी की हेल्प चाहिए। आई नीड समबडी एट द स्टोर टू गाइड मी हाउ टू बाय इट एंड विच वन इज गुड फॉर मी। होम यूज के लिए कौन सा सही है, ऑफिस यूज के लिए कौन सा सही है, डिसीजन शायद मैं ना ले सकूं। तो इसीलिए डॉलर से क्या किया, फिर डीलरशिप पे सेल्स पर्सन को डिप्लॉय किया। उसका काम क्या है, लोगों की परचेज को सहल करना। ठीक है। अच्छा, शॉपिंग गुड में कोई चीज पूछनी हो आपको तो पूछ लें। शॉपिंग गुड्स में, शॉपिंग कैटेगरी में ये भी टाइप ऑफ गुड है। आपको कंसिडरेशन नहीं समझ में आई तो मुझसे आप प्लीज पूछ सकते हैं। सूरज, को सवाल आपका? नो मैम। अच्छा, आगे जो है हम चलेंगे, वी टॉक अबाउट स्पेशलिटी गुड्स। ठीक है। स्पेशलिटी गुड्स जो हैं, ये इनके टाइप क्या होती है? स्पेशलिटी गुड्स अब लग्जरी गुड्स हैं।
एक्सपेंसिव गुड्स, एक्सक्लूसिव गुड्स हैं, ठीक है। इसमें आ जाते हैं आपके एक्सोटिक वेकेशंस, इसमें आ जाती हैं आपकी लग्जरी वॉचेस, इसमें आ जाती है आपकी एक यॉट आपने खरीदी हुई है, ठीक है। तो स्पेशलिटी गुड्स जो हैं ये वो गुड्स हैं जो कि हम एक आम इंसान, एक आम टिपिकल कंज्यूमर रोजमर्रा इस्तेमाल में नहीं करता। स्पेशलिटी गुड्स, ठीक है। लग्जरी गुड्स हो गए, इसमें आपके हाई एंड वेकेशंस भी आ जाते हैं और इसमें आपके लग्जरी वॉचेस भी आ जाती हैं। इसका बाइंग बिहेवियर कैसा है सुनिएगा जरा। लग्जरी गुड्स का बाइंग बिहेवियर कैसा होता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस होती है। इट रियली मीन्स टू वेयर अ सीको वॉच एंड अ रोलेक्स वॉच, जमीन आसमान का फर्क है। सीको की घड़ी मेरा पहनना, अमीर का रोलेक्स पहनना, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। मेरा एक टोयोटा ड्राइव करना, उमर का एक जर्मन गाड़ी चलाना, जमीन आसमान का फर्क है। तो स्पेशलिटी गुड्स में बहुत ज्यादा ब्रांड प्रेफरेंसेस होती हैं और लोग लॉयल होते हैं उस ब्रांड को लेके। पीपल हु आर ड्राइविंग जर्मन व्हील्स वुड प्रेफर ड्राइविंग अ जर्मन व्हील इन एनी केस। उनके पास पैसे हैं, उनको उससे एक एक्सपीरियंस मिलता है जो कि अनपैरेलल है, दे विल स्टे लॉयल टू दैट ब्रांड। पीपल हु आर बाइंग रोलेक्स वुड प्रेफर बाइंग रोलेक्स, ठीक है। सो ये ब्रांड लॉयल्टी ज्यादा देखने में आती है। दूसरी बात, हम स्पेशलिटी गुड्स को खरीदने के लिए स्पेशल परचेज एफर्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत हाई एंड गुड्स होते हैं और हम इंतजार भी करते हैं कि अगला मीडियम, अगला वेरिएंट, अगला मॉडल जब आएगा। जब तक नहीं आता हम वेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप एप्पल के ही गुड्स खरीदते हैं, फ्रॉम एप्पल वॉचेस टू एप्पल टेलीविजन अगर आप खरीदते हैं, ठीक है, सही है, एप्पल कंप्यूटर्स अगर आप खरीदते हैं, तो अगर सपोज करें कि बीच में सैमसंग कोई अपग्रेड मॉडल लेके आ जाते हैं और एप्पल नहीं लेके आया अभी तक, अगर आप एप्पल की चीज से मुतमईन हैं और आपको पता है कि एप्पल का कोई पैरेलल नहीं है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस है ना, तो जब तक कि एप्पल अपग्रेड वर्जन नहीं लेके आता आप वेट करते हैं। जैसे मुझे अपने लिए एक लैपटॉप चाहिए था लास्ट ईयर, ठीक है, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यार सैमसंग के भी लैपटॉप्स हैं, उनके बहुत हाई एंड वर्जन आए हैं, लेकिन मुझे अब जो कंफर्ट मिला है लैपटॉप एप्पल की चीजें यूज करने से, ठीक है, मुझे एप्पल के आईफोन ने और एप्पल के आईपैड ने इतना, एप्पल वॉच ने इतना पर्सुएड कर दिया कि मैं लैपटॉप भी एप्पल का ही लूं। तो जब तक उसका एक वर्जन हाई एंड नहीं आता, आई वेट, आई वुड नॉट प्रेफर बाइंग सैमसंग। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। दूसरी बात, मुझे पता है कि एप्पल एक ग्लोबल ब्रांड है और अगर मैं, आपने पढ़ा था कंज्यूमर बिहेवियर में सेल्फ इमेज, अगर मैं अपने आप को ग्लोबल सिटीजन समझती हूँ तो मेरी बाइंग भी ग्लोबल होगी। अगर मैं समझती हूँ एज अ पर्सन, मेरा सेल्फ इमेज ये है कि आई डिजर्व गुड थिंग्स इन लाइफ, आई डिजर्व द बेस्ट बिकॉज आई वर्क हार्ड, सो आई गो टुवर्ड्स ब्रांड व्हिच गिव मी सच फीलिंग। तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस होती है, ठीक है। ब्रांड्स के बीच में क्या होता है, लिटिल कंपैरिजन। अगर मुझे कोई आके बोले कि बस आप एप्पल का एप्पल के लैपटॉप का वेट कर रही है, सैमसंग वॉच की ऑफर लेके आया, तो मैं हो सकता है कि कहूँ कि देयर इज लिटिल कंपैरिजन बिटवीन एप्पल एंड सैमसंग। टू मी एप्पल हैज नो पैरेलल, ठीक है। फिर हो सकता है मुझे को कहे कि मिस एप्पल जो सैमसंग का जो लैपटॉप है वो 1 लाख सस्ता है एप्पल से, और अगर कोई कंज्यूमर जो कि हमेशा एप्पल गुड से मुतमईन है, लॉयल है उससे, तो वो क्या कहेगा, यार वो 1 लाख ज्यादा होने की वजह से एप्पल को खरीदना छोड़ नहीं देगा। तो हम देखते हैं कि स्पेशल गुड्स के जो बायर्स होते हैं इनमें लिटिल प्राइस सेंसिटिविटी होती है, इनमें लिटिल प्राइस सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। ये प्राइसेस के हाई होने की वजह से, प्राइसेस के बढ़ जाने की वजह से गुड को खरीदना बंद नहीं करते। रोलेक्स पहनने वाला शख्स पैसे नहीं देखता, वो कदर देख रहा है। जिस शख्स को एक्सोटिक वेकेशन चाहिए उसे कीमत मैटर नहीं करती, एक्सक्लूसिविटी मैटर करती है, ठीक है। शॉपिंग गुड्स खरीदने वाला जो शख्स है, शॉपिंग गुड्स खरीदने वाला शख्स और कन्वीनियंस गुड्स खरीदने वाला शख्स ये प्राइसेस देखते हैं। स्पेशलिटी गुड्स खरीदने वाला शख्स प्राइसेस देख के फैसला नहीं करेगा उसे आया गुड चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए स्पेशलिटी गुड्स का गाहक मार्केट में कम होता है। फिर हमारे पास है स्टूडेंट्स प्राइसिंग, तो ऑब्वियसली स्पेशलिटी गुड्स की प्राइसेस हाई होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे कन्वीनियंस गुड की डिस्ट्रीब्यूशन वाइड स्प्रेड है, गाहक बहुत ज्यादा है, शॉपिंग गुड्स की सिलेक्टिव हो गई, तो स्पेशलिटी गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक्सक्लूसिव होती है। गाहक 1 in a million गाहक होता है उसका, 10 में से सिर्फ 3, 100 में से सिर्फ 3 लोग रोलेक्स पहनते हैं, ठीक है।
हमें आमतौर पर रोलेक्स के शोरूम नजर ही नहीं आते खड़ी होकर, बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही एक्सक्लूसिव होती है। ठीक है, एक आउटलेट होगी, 2 आउटलेट होंगी पूरे मार्केट के अंदर, क्योंकि पूरे मार्केट में कोई 2000 शॉप्स हैं, ठीक है, या कोई 5000 शॉप्स भी हैं, कोई एक शॉप से रोलेक्स की होगी, गाहक बहुत कम एग्जिस्ट करता है इसका। दूसरी बात, क्योंकि रोलेक्स काइंड ऑफ गुड्स यार आप पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी को तो बेच नहीं रहे ना, तो उसको फिर आप मास प्रमोशन नहीं करेंगे, आप टेलीविजन नहीं यूज करेंगे, टेलीविजन हर शख्स देख रहा है, जो जिनकी लिविंग रिमोट है वो भी देख रहे हैं, और जिनकी लिविंग अपस्केल है वो भी देख रहे हैं ना, तो ये मास प्रमोशन हो गई। इट इज मतलब एक स्क्रीन लगती है और हर तरह का शख्स देख रहा है उसको, हर सोशो इकोनॉमिक क्लास का शख्स देख रहा है उसको। तो जो स्पेशलिटी गुड्स हैं, ये कहते हैं अपने आप को हम प्रमोट मास मीडियम से नहीं करेंगे, मास प्रमोशन हम नहीं करेंगे, तो ये अपने आप को कोशिश करते हैं, सेल भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं फ्रॉम वेरी केयरफुली सिलेक्टेड प्रमोशन मीडियम्स। आमतौर पे रोलेक्स के एड्स जो हैं या एक्सोटिक वेकेशंस के एड्स जो हैं या स्पेशलिटी गुड्स के एड्स किस में आते हैं? ग्लॉसी पेज मैगजीन्स में आते हैं। तो हम कहते हैं कि स्पेशलिटी गुड्स की प्रमोशन कैसी होती है? इट इज मोर केयरफुली टारगेटेड प्रमोशन बाय बोथ द प्रोड्यूसर एंड द रीसेलर्स। ये बहुत वाइडली प्रमोट नहीं किए जाते। रोलेक्स का एड रेडियो पे नहीं आता, रोलेक्स का एड डॉन न्यूज़पेपर में भी नहीं आता, क्योंकि बहुत ठीक है, बहुत लीडिंग डेली है आपका, लेकिन रोलेक्स का एड आपको नजर आएगा टाइम्स मैगजीन में, एग्जीक्यूटिव के लिए है। डॉन पे सब लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट भी पढ़ता है, लाइब्रेरियन भी पढ़ता है, फैकल्टी भी पढ़ती है, टीचर भी पढ़ता है, डॉक्टर भी पढ़ता है, लॉयर भी पढ़ता है, इंजीनियर भी पढ़ता है, ये सब लोग रोलेक्स नहीं पहनते, एग्जीक्यूटिव पहनता है। तो इसका एड फोर्ब्स मैगजीन में आएगा, हार्वर्ड में आएगा, टाइम्स में आ सकता है, ठीक है। जितने ग्लॉसी पेज मैगजीन्स हैं फैशन से लेकर एग्जीक्यूटिव को कवर करने के लिए, उनमें इनके एड्स आएंगे। तो बड़ी सिलेक्टिव और बड़ी केयरफुली टारगेटेड प्रमोशन होती है इसकी। ये आपके स्पेशलिटी गुड्स हो गए और ये इनकी मार्केटिंग कंसिडरेशंस हो गई। कोई सवाल आपने पूछना तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। आपके पापा हमारे साथ हैं, माइक खोलिएगा। यस मैम। आपको कुछ पूछना है? आपको स्पेशलिटी गुड्स क्लियर हुआ है आपको? हाँ मैम क्लियर। लास्ट कैटेगरी ऑफ गुड्स जो है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं अनसॉर्ट गुड्स। लास्ट कैटेगरी ऑफ गुड्स जो है मेरे पास वो है अनसॉर्ट गुड्स। अनसॉर्ट गुड्स वो हैं जो कि नजर से ओझल होते हैं। द नेम हैज अ मीनिंग। इनको हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत रेयर इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस कैसे गुड्स होते हैं, एग्जांपल देखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस एंड रेड क्रॉस ब्लड डोनेशंस, ठीक है। डिटर्जेंट्स आम इस्तेमाल के गुड, टेलीविजन भी हम घरों में देखते हैं, खरीदारी करते हैं लोग, राइट। एक लग्जरी आइटम्स लोग खरीदते हैं। अनसॉर्ट गुड्स बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है या फिर ब्लड डोनेशन है। ब्लड डोनेशन की शॉप पे लोग तब जाते हैं खुदा ना खास कोई एक्सीडेंट होता है, और लाइफ को जैसे डिजाइन किया है नेचर ने, एक्सीडेंट्स बहुत रेयर हैपनिंग, ठीक है, सही है। लेकिन अनसॉर्ट गुड्स की भी मार्केट है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ऑर्गन डोनेशंस जो होते हैं, ये तकरीबन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अनसॉर्ट कैटेगरी में आता है, ठीक है। अच्छा, इसका बाइंग बिहेवियर कैसा है, कस्टमर बाइंग बिहेवियर कैसा, हम ये देखते हैं। लिटिल प्रोडक्ट अवेयरनेस, लोगों को अनसॉर्ट गुड्स के बारे में नॉलेज नहीं होता है। अगर आप मुझे कहें कि बस आपके पास 5 मिनट है, 2 मिनट है आपके पास, बस आप 10 टेट्रा पैक मिल्क ब्रांड्स के नाम लें, तो मैं आपको 10 या 11 के नाम बता दूं। सुनते रहते हैं ना, हम इस्तेमाल करते हैं, सुनते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, रेफर करते रहते हैं, तो मेरे पास तजुर्बा है, मैं बता सकती हूँ आपको। लेकिन आप मुझे कहेंगे आपके पास 3 मिनट है, आपने 10 ब्लड डोनेशन कंपनीज का नाम लेने हैं, तो यार अभी जो सकता है हो सकता है मैं आपसे सॉरी बोलूँ यार टाइम थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि मैंने इतने ज्यादा उनके बारे में सुना है ना कभी देखा है, शुक्र खुदा का, ठीक है। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना इतने एडवर्टाइज होते हैं, ना उनके बारे में इतनी अवेयरनेस है। द रीजन आपने देखा था जैकलिन का इसके बारे में लेस नॉलेज है। तो इसका बाइंग बिहेवियर कैसा होता है, लिटिल प्रोडक्ट अवेयरनेस से कंज्यूमर को नॉलेज कम होता है, ठीक है। और या तो नॉलेज नेगेटिव होगा, या नॉलेज
कम है या वो अनअवेयर होता है, नेगेटिव इंटरेस्ट होगा। मैं आपसे ये भी कह सकती हूँ कि यार ब्लड डोनेशन के बारे में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। फिर मैं आपसे कह सकती हूँ कि आई एम लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज। तो ब्लड डोनेशन सर्विसेज के बारे में उन लोगों को पता चलना चाहिए जो कि हेल्थ पे वीक होते हैं, खुदा ना खास्ता कोई इशू होता है उनका हेल्थ को लेके, या फिर देयर आर अदर इश्यूज। सो आई कैन सिंपली से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कैटेगरी, द रीजन आई हैव लेस अवेयरनेस। प्राइसेस कैसी होती हैं इनकी अनसॉल्व गुड्स की, वेरी करती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है वो वेरी करता है, ठीक है। अब देखें, इंटरनेशनल वर्ल्ड के राइटर ने किताब लिखी है, तो उसके हाँ अनसॉल्व गुड्स की प्रमोशन कैसी होती है, एग्रेसिव। हाँ, तो जान बचाना यार बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, और फौरन से बेशतर बचाई भी जाती है। People come to rescue you. You are an animal or you are a human creature. You are a living being. As long as you are God's creation, आपकी मदद के लिए कोई ना कोई आता है। तो वहाँ पे काफी ज्यादा अवेयरनेस होती है लोगों को कि आपको ब्लड डोनेशन के लिए कहाँ जाना है, ऑर्गन्स कहाँ मिलते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स कहाँ मिलते हैं। तो एक्सीडेंट्स को लेके फर्स्ट वर्ल्ड काफी अलर्ट होती है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एक्सीडेंट्स को लेके, अनसर्टेनिटीज को लेके, कैटास्ट्रोफीज को लेके हमको प्लानिंग नहीं करते, हम सोचते भी नहीं इनके बारे में कि ये हादसा भी होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में आई डू नॉट नो, एक तो हादसा बहुत ज्यादा होते हैं कंपैरिजन टू थर्ड वर्ल्ड। वो एक्सपेरिमेंटिंग नेचर के हैं, जहन में रखिएगा, तो वहाँ पे हादसा भी ज्यादा होते हैं और मसले मसाइल भी हो सकते हैं। लेकिन एक वजह जो साइंटिफिकली मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि द मोर यू ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है, द मोर इज अ चांस दैट यू विल कम अक्रॉस एरर और सम मिसहैप। लेकिन वो उससे चुकते नहीं है, वो कहते हैं लर्निंग का हिस्सा ही है। तो फेलियर्स भी होते हैं लाइफ में, तो फेलियर्स को अवॉइड करने के लिए वो प्लान भी क्या रखते हैं, वो लोगों को बताते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाए तो आपने इस नंबर पे कॉल करना है, तो लोगों को नंबर पता होता है, ठीक है। कोई अनसर्टेनिटी हो जाए तो आपने कहाँ पे जाना है, लोगों को पता होता है। एक्सीडेंट हो जाए फौरन से आपने कहाँ पे जाना है, लोगों को पता होता है। तो वहाँ पे यार इस चीज को बहुत एग्रेसिवली एडवर्टाइज किया जाता है। लाइफ वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनसॉल्व गुड्स जहाँ पे जो कि लाइफ सेविंग की चीजें जितनी भी होती हैं, फ्रॉम ब्लड डोनेशंस टू लाइफ सेविंग ड्रग्स, ये सारे काफी ज्यादा एग्रेसिव एडवर्टाइज किए जाते हैं। दूसरी बात पर्सनल सेलिंग भी होती है। डॉक्टर्स हैं फॉर इंस्टेंस, वो पर्सनली टेलीविजन पे आके आपको या यूट्यूब पे आके टेस्टिमोनियल्स भी देते हैं, आपको सजेस्ट भी करते हैं कि आपने क्या कौन सी मेडिसिन आपके लिए है, कौन सी चीज आपके लिए नहीं है। हमारे यहाँ वीसी हेयर स्टाइलिस्ट सेलिंग शैम्पूज ऑन टेलीविजन। सनसिल्क शैम्पू बना रहा है तो उसने नबीला के साथ कोऑर्डिनेशन की और एक बड़ा सा शैम्पू लेकर आ गया, ठीक है। खाड़ी ने आपके जितने भी डिजाइन थे वो दीपक परवानी से डिजाइन करवाए। तो वी हैव रेडी मार्केट फॉर दीज गुड्स। लेकिन ब्लड डोनेशंस के लिए हम कहाँ पे जाएं, हमें क्या पता कौन सा ब्लड, कौन सी कंपनी ज्यादा हेल्दी ब्लड सेल कर रही है। इसके लिए कोई टेलीविजन पे टेस्टिमोनियल नहीं आता है, मैं तो नहीं सुना, आप बता दीजिए मुझे। क्योंकि यार हमारे लिए, हमारे यहाँ एक बड़ी एक रिमोट मार्केट है ये। तो ये जो वर्ड एग्रेसिव लिखा हुआ है ना, इट हैज अ कल्चरल बैकग्राउंड टू इट। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि ये मैं कह सकती हूँ कि अनसॉल्व गुड्स बड़े एग्रेसिवली सेल होते हैं। हाँ, सेल होते हैं ड्यूरिंग रमजान। आप देखें ब्लड डोनेशन सर्विसेज के ऐड एग्रेसिवली कब आते हैं, पूरा साल आते हैं? नहीं, पूरा साल ऐड लक्स का, मिल्क पैक का, चॉकलेट्स का, कोक का, आइसक्रीम का, फंटा का बहुत आता है। लेकिन ब्लड डोनेशन सर्विसेज कहाँ मिलती हैं, कैसे करना है, क्या नहीं करना, कौन कौन इसमें है, ये सिर्फ रमजान में आता है। क्लास आप मेरी बात सुन रहे हैं? Yes, ma'am. किसी ने कुछ पूछना है आप में से? Overall a question. पूछे प्लीज। Is there anything common between all these type of goods? यस, कंज्यूमर यूसेज, वी ऑल यूज दिस वर्ड्स। कॉमोडिटीज ये है, देखिए आपकी गुड्स की टाइप्स होती है, देयर आर इंडस्ट्रियल गुड्स एंड देयर आर कंज्यूमर गुड्स। Okay, ma'am. इंडस्ट्रियल गुड्स में मशीनरी आ जाती है। फैक्ट्रीज में जो प्लांट मशीनरी होती है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री सेल होती है, वो कंज्यूमर्स के लिए नहीं होती। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताती हूँ कि यार एक वक्त था हमारे घर में एसी उस वक्त नया आया था, हम छोटे थे उस वक्त बहुत, ठीक है। और इससे पहले कि एसी हमारे घर में आता है, हमारे घर में पहले रूम कूलर आया था। रूम कूलर्स भी होते थे, कोई चीज थी, अपने पेरेंट्स से आप पूछेगा उनको पता होगा।
तो रूम कूलर जो मेरे घर में आया यार वो मेरे कमरे के बराबर था। अगर मेरे कमरे का साइज आपके 3 क्लासरूम्स के बराबर है तो मेरे कमरे के बराबर जिस रूम में हमारी क्लास होती है, बहुत छोटा सा कमरा है ना, वही क्लास होती है, सपोज वैसे 4 कमरे हैं, ठीक है, मेरा बेडरूम उसके साइज का है। तो मेरे वालिद जब रूम कूलर लेकर आए, इट वाज हाफ द साइज ऑफ माय रूम। तो किसी ने हमें, माय अंकल केम फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, उन्होंने मेरे पापा को गिफ्ट दिया था, छोटे भाई थे, बहुत सालों बाद आज पापा के लिए वो लेकर आए थे रूम कूलर। अच्छा यार वो इतने बड़े साइज का था, मैं समझ में नहीं आता हम घर का क्या फर्नीचर निकाल के से कमरे के अंदर रखे। तो somebody told us कि ये इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए, फैक्ट्रीज में लगता है, आपके लिए नहीं है ये। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो घरों Yes, में ma'am. जो घरों में जनरेटर्स लगते हैं उनका साइज छोटे होते हैं, जो जनरेटर्स कंपनीज में लगते हैं यार वो तो काफी एक्सटेंसिव, बड़े ह्यूज साइज के होते हैं। ठीक है, सही है। तो कॉमन थ्रेड इसमें ये है कि सारे कंज्यूमर गुड्स हैं, तो मार्केट में बिकने वाले तमाम गुड्स कंज्यूमर गुड्स नहीं होते, इंडस्ट्रियल गुड्स भी होते हैं, लेकिन मैं आपको वो नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। अच्छा क्लास, अगर आप मुनासिब समझें तो कैन वी टेक अ ब्रेक फॉर 15 मिनट्स प्लीज। मैं आपको Sure, ma'am. 5 बजे तक पढ़ाऊंगी, ठीक है, सही है? आपके बाप मेरी बात सुन रहे हैं? Yes, ma'am. आई टीच यू टिल 5 o'clock, ठीक, सही है। मुझे अभी हमें काम करते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट के बाद एग्जैक्टली हम ज्वाइन करते हैं, प्लीज आप कहीं जाइएगा मत, ठीक है, मतलब टेक अ ब्रेक, आपको जो करना है कर लें, 15 मिनट्स के बाद एग्जैक्टली हम ज्वाइन करते हैं। तो या लेट्स स्टार्ट अगेन देन, ठीक है, 15 मिनट्स, हैव अ ब्रेक प्लीज ऑल।